Hi everyone, my name is Manish Chouhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में what we have studied, what is the definition of acid, classification of acids, and let's recall what is sulfuric acid, H2SO4, sulfurous acid, H2SO3, nitric acid, HNO3, nitrous acid, HNO2, phosphoric acid, H3PO4, phosphorus acid, H3PO3, hypophosphorus acid, H3PO2, right? तो ये सारे एसिड्स हमने पढ़े. वी हैव सीन ऑर्गेनिक एसिड्स, थ्री इंपॉर्टेंट. acetic acid formula is CH3COOH, formic acid HCOOH. Now in today class a very important concept, definitely you will get question from here, 100% sure, right? And you will get 1 mark question. Now today we are going to study basicity. Now basicity, what do you mean by basicity, right? Basicity is defined for acid, right? It is defined as number of hydronium ion produced by ionization of one molecule of acid in aqueous solution, right? Example. Now can you see this HCl? In HCl you add in water. What will you get? So this H will combine with water and it will form H3O positive plus Cl negative. Right? It produces what? One hydronium ion. Right? So the basicity of hydrochloric acid is 1. Number of hydronium ion produced by ionization of hydrogen atom per molecule of acid. Very, very important. Again, I'll repeat. What do you mean by basicity? Number of hydronium ion produced by ionization of hydrogen atom by one molecule of acid in aqueous solution is known as basicity. Now, here if you see H2SO4, now in water it will give 2H positive and those 2H positive will combine with 2 water molecules and you will get 2 hydronium ion plus SO4 2 negative. Now this sulfuric acid is known as what? It is known as dibasic acid. The basicity here is 2. Here basicity is 1. Why? It gives 1 hydronium ion, it gives 2 hydronium ion, right? Now the first question is one monobasic acids. What is monobasic acids? Acids which on ionization in water produce 1 hydronium ion per molecule of that acid in aqueous solution. Simple, 1 hydronium ion. Example, HCl. Water will give you hydronium ion plus Cl negative. अरे सर बार बार वही चीज काहे बता रहे हो? अरे बिटुआ, ये जो एसिड मैं तुम्हारे ब्लड में डाल देना चाहता हूं, अरे एसिड ब्लड में नहीं डालना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे ब्लड में चला जाए, राइट? मींस HCl जो है, ठीक है, ये मतलब बार बार बोल बोल के याद हो जाएंगे आपको. HCl को पानी में डाला सर, गिव 1. So HCl is an example of monobasic acid. Sir, one more example. Which acid is this written? Nitric acid. इसको पानी में डालो तो ये क्या बन जाएगा? सर H3O positive plus NO3 negative. सर 1 हाइड्रोनियम आयन, तो 1 हाइड्रोनियम आयन बना जी सर, मोनोबेसिक एसिड. अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना हो, ठीक? अच्छा, जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को प्रोटॉन का मतलब नहीं मालूम था, ठीक?
अब जैसे ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन, सबको मालूम है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, प्रोटॉन कितने हैं, 1, न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। अगर आप इसमें से एक क्या करिए, एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, निकाल दीजिए, तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मींस 0, प्रोटॉन कितने, 1, न्यूट्रॉन कितने, 0। तो H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन बनाना हो आपको कि गिव वन एग्जांपल ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड, क्या एग्जांपल देना हो, मोनोप्रोटिक एसिड, कभी ये वर्ड इस्तेमाल करना हो तो घबराइएगा मत। मोनोप्रोटिक एसिड मींस विच गिव वन H पॉजिटिव आयन और इट प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन। यार एक कीवर्ड पकड़ो, अच्छा इसमें पूरे कीवर्ड पकड़ो। तो आप सोच रहे हो कीवर्ड है वन हाइड्रोनियम आयन, इसमें कीवर्ड एक और है, आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम आयोनाइज होके जो हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन, ओके, इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। एक और देखते हैं, diabasic acid. Diabasic acid also you can write, another word you can write diprotic acid also you can write। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया डायबेसिक एसिड, बच्चा हाथ खड़ा करके कहता है सर क्वेश्चन इज रॉन्ग। मैंने कहा भाई क्वेश्चन क्या है के लिए रॉन्ग, कहता है सर ये पूछ रहा है डायबेसिक एसिड, ये बेस पूछ रहा है कि एसिड पूछ रहा है। अरे बाबा डायबेसिक एसिड मीन जिसकी बेसिसिटी 2, राइट, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयन per molecule of that acid in aqueous solution, and the best example is H2SO4। इसको मिलाओ पानी में, सर ये कितने H देगा, सर ये 2 देगा। ये 2 H पॉजिटिव 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। एक और एग्जांपल, सर H2SO3, बोलो कौन ससुरा का चीज है रे, ये है सल्फ्यूरस एसिड। क्या चीज है ये, सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आई बात, इसको कौन पानी में मिलाया, कितना पानी लगेगा रे सांभा, ये 2H पॉजिटिव देगा 2H2O, क्या बनेगा 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस SO3 2 नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई। देखो ये कितने दे रहा है, 2H पॉजिटिव दे रहा है और ये बन कितने रहे हैं, 2 हाइड्रोनियम आयन, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई, डाई मतलब 2, डायबेसिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा कोई एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताता मैं तुमको, एक और एग्जांपल H3PO3, इसका सोच के बताइए मुझे, इसमें व्हाट इज द बेसिसिटी, इस पे हम बात करते हैं, सोचिए सोचिए। अच्छा नाउ ट्राइबेसिक एसिड, व्हाट इज ट्राइबेसिक एसिड, so the acid which on ionization water produce 3 हाइड्रोनियम आयन, the way the basicity is 3, that is called what, ट्राइबेसिक एसिड। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, H3PO4 पानी में मिलाया, सर कितने कितने H है यहाँ पे, 3, ये 3 देगा, तो ये 3 पानी के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके क्या बनाएगा, 3 हाइड्रोनियम आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव। तो फॉस्फोरिक एसिड, which acid is this, phosphoric acid, phosphoric acid is example of tribasic acid। अच्छा, now I am going to write something on the board which is not a part, you will not get at the board exam, but that is for your understanding। What is that, I'll tell you, I will tell you, now look here everyone, see, I'll draw one structure, S double bond O double bond O OH। ध्यान से सुनना,
ये स्ट्रक्चर तुम्हें बोर्ड में बनाने के लिए कभी नहीं आएगा। आपको सिर्फ समझना, सर क्या समझना है? आप ये हाइड्रोजन देख रहे हो, ये ऑक्सीजन के साथ लगा है, ठीक? ये हाइड्रोजन आयोनाइज होते हैं। ये एक हाइड्रोजन देगा, ये दो हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, they are ionizable. So how many hydrogen are ionizable here? 2. So basicity here is 2. बात समझ में आई? चलो मैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए, ये बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ समझा रहा हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड में इट गिव्स 2H पॉजिटिव आयंस। ये स्ट्रक्चर, ये सल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर होता है, राइट? इसमें कितने? It will give 2H positive ions in aqueous solution. So basicity is what? 2. Basicity is 2, right? चलिए आपको और बताते हैं। अब जैसे what is the basicity of acetic acid here? Now let's draw the structure. स्ट्रक्चर की चिंता मत करना, मेरा एक और वीडियो आएगा ऑर्गेनिक में, आपको प्रॉपर कैसे लिखते हैं, बोर्ड का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से लिखना है। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सी द फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग। पहले आप चीज को समझो, फिर लिखना कैसे हो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए एक प्रॉपर शीट डिजाइन करूंगा, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर में लिखा जाता है, हाउ टू स्कोर फुल और फुल। आप बोलेंगे सर मजा आ गई। अब इधर देखिए, ये कौन है? एसिटिक एसिड। ये कौन है? एसिटिक एसिड। अब मुझे बताओ, सब सोच रहे हैं व्हाट इज द बेसिसिटी? बेटा इसकी बेसिसिटी है 1। सर 1 क्यों? बेटा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा है ना, ये आयनाइजेबल है। ये जो कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़े हैं, दे आर नॉट आयनाइजेबल। समझ में आई? ये आयनाइजेबल नहीं, ये आयनाइजेबल है, राइट? तो मैंने आपको शुरू में बताया, द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट अलोंग विद ऑक्सीजन, दैट इज आयनाइजेबल, राइट? दैट इज व्हाट। अब आप पूछोगे सर ये क्यों? एक्चुअली मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, और H को क्या बोलेगा? निकल यहां से। अब फिर से देखो, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, अरे ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है? ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, ठीक? ये मेरे 2 बच्चे हैं, दिखाई दे रहे हैं 2 बच्चे। और ये कौन है? ये मैं हूं। ये देखिए OH, ये हमारी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक? अब ये ऑक्सीजन क्या है, मेरी वाइफ क्या कर रही है, जिस दिन मुझसे लड़ाई हो गई, इन दोनों बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया और मुझे बोला तुम तो निकल लो घर से, ठीक? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को बोलेगा जाओ निकलो, ठीक? तो कहने के बाद दिस वन इज आयोनाइजेबल and these 3 are not ionizable. That is why I'm saying in definition of basicity, what is more important? Number of hydronium ion produced on ionization of hydrogen atom by one molecule of acid in aqueous solution is known as basicity, right? So basicity answer is 1, right? Next, now phosphoric acid, let me draw, this is for understanding, you will not get in board exam. P double bond O, OH, OH, OH। अब मुझे बताइए कितने हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ लगे हैं? सर 3, एक ये तीनों आयनाइजेबल है। तो इसकी बेसिसिटी क्या हुआ? इसका बेसिसिटी क्या हुआ? इसका बेसिसिटी हुआ 3। इसका बेसिसिटी कितनी हुई? 3। अच्छा एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH and H। नाउ टेल मी, यहां पे कितने लोग ऑक्सीजन के साथ बैठे हैं? एक ये 2 आयनाइजेबल हैं, ये वाला आयनाइजेबल नहीं है। तो बेसिसिटी क्या हुआ? बेसिसिटी हुई 2। And the last one, what is the name of this? What is the name of this? This is H3PO4, phosphoric acid. This is H3PO3. This is phosphorus acid. What is the basis? This is diabasic acid. This is
डाई बेसिक एसिड, ये सवाल दे देंगे हम आपको पेपर में। एंड द लास्ट वन, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एच एच। इसमें देखिए एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो यही आयनाइजेबल है, ये दो आयनाइजेबल नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हुई? बेसिसिटी इज 1। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट H3O, what is the what is this? Hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid is monobasic acid, right? तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया बेसिसिटी। H3PO3, the basicity answer is 2. The basicity of H3PO2 answer is 1. Only this much is needed. अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको सपोज करो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO2 एंड देयर इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड आफ्टर दैट दे राइट 1, 2 और 3, राइट? लाइक सपोज दिस इज गिवन इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक? क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO2 डैश एंड दे हैव गिवन यू दिस ऑप्शन, और आपने कहा इसकी H3PO2 की बेसिसिटी होती है 1 और आपने आंसर लिख दिया 1, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? ध्यान से सुनिए, अगर उन्होंने पेपर में ONE करके लिखा है 1 या TWO, तो बेटा यू हैव टू राइट ONE। याद रखिएगा, बोर्ड में बच्चे ऐसी बहुत गलती करते हैं, H3PO3 वो 1 को न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमरल फॉर्म में लिख देंगे 1, नहीं, आपको लिखना ही क्या है? ONE। बात याद रखिएगा किस तरीके से पेपर, मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा कि पेपर में कैसे कैसे लिखना है, ठीक? पर ये सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, समझिए, राइट? और आपकी अंडरस्टैंडिंग, बोर्ड में कोई स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट अलोंग विद व्हाट, प्रेजेंट अलोंग विथ किसके साथ? सर ये देखिए ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है? आयनाइजेबल। बेसिसिटी इज 3, यहां पे आयनाइजेबल कितने? 2, बेसिसिटी इज 2 एंड हियर बेसिसिटी इज 1। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वाला टॉपिक भी कवर होता है। मैं आपके लिए ये सल्फ्यूरिक फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसी के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।